तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में मेरा था। हर स्क्रिप्ट में मेरे कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं, ये वाला भी है। सो द डिजाइन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर अस, डू यू थिंक यू कैन पुट अ नेम फॉर दैट आर्ट पीस? मैं वैसे आज सुबह ही सोचा था, एंड आई थिंक एपिफेनी इज द राइट नेम फॉर इट। What is the right name? एपिफेनी। Okay, and why is that so? उसका डिक्शनरी अगर मीनिंग देखें, एपिफेनी इज अ रियलाइजेशन, right? Or it is in biblical sense, it is the manifestation of Christ. But हम religious sense में जा रहे थे, but अगर हम manifestation और manifestation भी नहीं, पहला meaning अगर हम discard कर दें और हम सिर्फ realization पे रहें, तो when you gave me that brief, which was app, तो जब रात को हम बात कर रहे थे फोन पे और तुमने ब्रीफ किया था, तो मेरे दिमाग में शुरू से वही था कि अनरैपिंग लेबल्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ unwrapping, what is the meaning of labels, and what does it signify, because it is a very unique concept in itself, because everybody talks about management and how to run a business. Nobody talks why did you name a business in a particular way, what was the ideology behind it. So again, words can be deceiving at the same times. Deceiving as in they can create a lot of unwanted chaos in your mind, and at the same time they can be very they can help you focus, they can direct you, they can be very directive in a particular direction. So I was exploring that. Hence, I use the element of braille, and I use the element of sign language, and I used symbolism. तुम्हारे दिमाग में और भी कुछ नाम आए थे, या this was the name that like was the only perfect fit? मेरे दिमाग में नाम आ रहे थे, पहले एक था सिम्फनी ऑफ साइलेंस, पर वो साइलेंस नहीं है, और वो सिम्फनी We are trying to be very loud. हाँ, नहीं, it is not loud here. I feel it is. मैं कल भी कोई podcast देख रहा था. It was about chanting. So it sometimes you become one with the words, and you are the part of that chant. You are the chant. You are like you are part of the universe. So sometimes you take your brands in such a way that you are the brand and you are the essence of the brand, right? And name defines you. So same way, but मेरे को वो जचा नहीं, सिम्फनी ऑफ साइलेंस, और मैं कुछ और सोचा था, पर मेरे को एपिफनी ठीक लगा, एंड एपिफनी वाज राइट अकॉर्डिंग टू मी. And I think ये डिजाइन की तरह ये भी एक बार में आई थिंक बहुत ही एक मैच है विद द डिजाइन, बिकॉज इफ इट्स रियलाइजेशन, वो एक्चुअल में अनरैपिंग लेबल्स का एक रियलाइजेशन है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्ट, तो आई थिंक नाम भी उतना ही मैच हो गया है हमारे साथ. तो आई थिंक वी आर गोइंग टू यूज दिस नेम फॉर गुड. ओके, तो अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रीफ, और मैंने कितना वेग डिस्क्रिप्शन दिया था कि मुझे क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए डिजाइन के बारे में, ये तो मैंने ऑब्वियसली स्टार्ट ही इसी डिस्क्रिप्शन से किया. सो व्हेन आई शेयर्ड माय थॉट विथ यू अबाउट व्हाट आई वांट, तुम्हारे दिमाग में इनिशियल आइडियाज क्या थे? और जो सबसे आई थिंक डिफिकल्ट पार्ट होता है इज हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट. तुमने कैसे स्टार्ट किया था उस पे? तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये डिजाइन किसी को दिखाया था रिसेंटली, और उन्होंने बोला कि ये तो हम कॉलेज कंपटीशन में वो बचकाने जो डूडल्स बनाते थे वैसा है, और बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये क्या बेकार चीज बना दी है. बट अगेन व्हेन आई स्टार्टेड इट, मैं पहले यही, मेरे हाथ में भी वो कार्ड है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को वो एक मेरे लिए बहुत इंटीमेट प्रोसेस था, और इसलिए मैं, मतलब वो इट ऑल स्टार्टेड विद the word, the realization of the word, what is unwrapping labels mean, and what will it mean to you.
as an entrepreneur, as a team, and what does it? Why is it named unwrapping labels? So then I started playing with words. इसलिए जो हमने कार्ड्स जो आर्ट पीस बनाया, I made it form of a visual poetry, and then I used the element of braille key. How are words for if we touch them, or how are words if we don't speak them? What kind of an energy do they emit? And it's the same key. That's why I use the color yellow, because it is a kind of an energy, and I believe in positivity, and hence I use primary colors, because it might mean different, different shade tints and tones for people. So hence it is a guy who is so just symbolism है, जो human figure है, that is actually somebody unwrapping, and that is used in sign language when you unwrap. So I have created that essence, and then the lines, they are how the words become a part of you, and how they become a part of your energy, and then how you radiate that frequency in your surroundings and the universe. And again, the element of braille, because how would it feel? And then what when we talk of words like unwrapping and labels, so वो क्या, how do you feel about it? Is it words juxtaposing? Is it what are we trying to unfold? What then are names labels just names? Are they tags? What are they? So it was all about that expression, and how can I simply try to project it. So I wanted to put in that. I think हम लोगों से ज्यादा थिंकिंग तुमने इस डिजाइन के पीछे कर ली है, बिकॉज ऑनेस्टली हम लोगों के दिमाग में तो एक्चुअल में कोई आइडिया नहीं था. तुम्हारे थॉट्स ज्यादा इलैबोरेट हैं इस पे. हमारे तो बहुत ही छोटे से थे कि हमें कोई डिजाइन चाहिए. आई थिंक दैट वाज द ओनली डिस्क्रिप्शन दैट वी हैड. बट हाँ, आई थिंक पसंद आया ना, ऑब्वियसली हम लोगों ने पैसा वसूल है. लोगों को पसंद आ रहा है ना, जिसको भेजा है. लोगों को पसंद आना नहीं आना जरूरी नहीं है, बिकॉज इफ दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस दे विल लाइक इट फॉर श्योर. बट एज अ जनरल आर्ट पीस उन्हें कितना पसंद आता है इसकी श्योरिटी नहीं है, नो डाउट. बट ऑब्वियसली हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए वो एक सिग्निफिकेंट पीस है. तो आई थिंक वो ही जरूरी है अभी के लिए. तो ओके, तबस्सुम के पास कोई क्वेश्चन है? आई थिंक Yeah, I'm going to ask you something related to your design only, your graphic design only. कि आपने इसमें जो कलर्स यूज किए हैं, येलो, रेड एंड, ठीक है, तो आपने ये कलर्स कैसे चूज किए हैं? इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है? येलो तो एनर्जी के लिए है. येलो हैप्पीनेस, और काफी ये जो स्कीम मैंने चूज किया बहुत सिंपल था. ये बेसिक कलर्स हैं, रेड येलो ब्लू. तो येलो हैप्पीनेस और एनर्जी और मतलब उस वाइब के लिए है. देन रेड पैशन के पीछे, पैशन के लिए माना जाता है, और एंगर के लिए माना जाता है, बट आई यूज इट फॉर पैशन. और अगर वो तुम शेक्सपियरियन इंग्लिश में जाओ तो पैशन इज सिनोनिमस टू एंगर ऑल्सो. वो काफी उसके soliloquies और डायलॉग्स में है. देन ब्लू इज अगेन, it's for depth, it is for a lot of things. It is for melancholy, and मतलब उस सेंस में भी जाता है, but it is not for melancholy here. I want it for depth basically. So
बाकी मैं कुछ सबकॉन्शियसली भी डिसीजंस लेता हूँ। अगर मैं फील कर रहा हूँ तो मैं वो, और इमोट कर रहा हूँ तो मैं कलर यूज करता हूँ अपने बाकी कामों में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिमेम्बर योर फर्स्ट कॉल विथ अ टीम। ये हमारे साथ इंटरेक्शन जो हुआ था पहली बार आपका, तो आपने कैसा फील किया था उस वक्त? हेजिटेशन थी, रिजर्व्ड एक्सप्रेशन थे, या कोई अदर मतलब कुछ ऐसा फील किया जो हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो यू कैन शेयर विथ अस नाउ। बी ऑनेस्ट, मैं भाग जाना चाहता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, तो मजा आया मतलब फिर कुछ बात कुछ काम तो मुझे पता है, कुछ काम तो मुझे पता है, मैंने जबरदस्ती करवाए हैं, बट ठीक है, आई थिंक आई टेक द क्रेडिट फॉर दैट। नहीं, बट ठीक है, थोड़ा डिस्क्राइब तो कर सकते हो, थोड़ा और डिस्क्राइब करो। और क्या डिस्क्राइब करूँ, मेरे को अपने नोट्स देखने पड़ेंगे। नोट्स देखिए, नोट्स बताइए। मतलब अपने या तो इतने ज्यादा फीलिंग्स थे कि उसको तुम्हें पॉइंटर्स बनाने पड़ गए, या फिर ऐसा था कि कुछ भी नहीं था, बस भाग जाना था, तो ठीक है, बाकी तो उसके बाद फिर जो हो गया वो हो गया, निकल गया। हाँ, मतलब वही, मैं भाग ही जाना चाहता था उस टाइम पे, क्योंकि मैं नए लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ उतना, और मेरे को टाइम चाहिए होता है घुलने मिलने के लिए। हाँ, बट मजा आया था बाद में। हाँ, वैसे हम लोग भी वैसे ही है, वी टू नीड टाइम कि लोगों के साथ घुल मिल एग्जैक्टली, सके, तो पार्शियली we can पार्शियली understand इंट्रोवर्ट्स your initial feeling। एक्चुअल में। अब एक सिचुएशन है जो स्वाति एक्सप्लेन करेगी, शुरू हो जाओ स्वाति। I want I want your reactions in some situations we have given, like हमारे पहले पॉडकास्ट के पहले हमें दिया गया था. So the first situation is, like, before starting the first podcast, we have to write 5 fear elements regarding the podcast recording, and then with, like, for each of the fear elements we have to write 5 5 worst scenario possible, so that, like, what if जो सिचुएशन हमने सोचा है अगर वो हो जाए, देन वी रोट इट, एंड देन द लाइक one day before the podcast recording we had a discussion on it. और वो क्वेश्चन दिव्या मैम ने पूछा था मुझसे एंड तबसम ऑफिस से, देन हमने डिस्कशन किया उस क्वेश्चंस पे. तो मैम ने हमारे सारे क्वेश्चंस एक बार सुना, एंड देन उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, अगर ये सारे सिचुएशन सच हो जाते हैं तो क्या बदलेगा? नो, एंड द आंसर इज नथिंग, बिकॉज हमारे पास कुछ था नहीं लूज करने के लिए. ठीक है, तो फिर मैम ने जो हमें आंसर दिया, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो मैम का ये स्टेटमेंट था कि अगर चलो तुम्हारे जो भी सिचुएशंस अगर हो ही जाते हैं तो क्या होता है, तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो एक स्टेटमेंट हमें सुनने को मिला एक दिन पहले, वो चीज हमें कितना मोटिवेट की होगी या कैसा फील हुआ होगा हमें? तो दिव्या की बात ये बहुत अच्छी लगती है कि वो उससे कुछ भी बोलो ना यार कि मेरे को ये लग रहा है वो लग रहा है। इनफैक्ट जब मैंने डिजाइन कंसोर्टियम में जॉब छोड़ा था और मैं बहुत ज्यादा जिटरी था कि यार क्या करूं, मेरे को कॉर्पोरेट नहीं जाना है या फिर मेरे को किसी और के लिए काम नहीं करना है, तो मेरे को बोलती ज्यादा ज्यादा क्या ही होगा, जो होगा देख लेंगे। तो वो बड़ी इन द मोमेंट रहती है और बड़ी कूल रहती है चीजें को लेकर। उसने लाइफ में, मतलब शी इज सच अ मोटिवेटिंग कैरेक्टर, और लाइफ में उसने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है दैट शी हैज अ लॉट ऑफ, शी इज अ वेरी पावरफुल लेडी। तो जो तुम लोगों को है, आई फील तुम लोगों को फिर काफी मोटिवेटिंग लगना चाहिए, क्योंकि एज ए टीम अगर तुम्हारा लीडर बोले कि जैसा क्या ही होगा। इनफैक्ट मेरे को याद है जब मैं नवरसा जंदे में काम कर रहा था, तो हमारा एक बहुत बड़ा शो होने वाला था, और जो दिनेश बहादुर हमारे एमडी थे, और उन्होंने बोला शो कैंसिल होने वाला था ऑलमोस्ट, तो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, कैंसिल हो जाएगा, जो लॉस होगा वो रिकवर कर लेंगे, क्या यही होगा ना, ऐसे होगा, कोई तुम्हें मार नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, रिलैक्स। तो उसमें फिर तुम्हें पावर मिल जाती है कि यार ठीक है, अब वी विल गिव आवर बेस्ट और ऑल आउट होके खेलेंगे, जो होगा देखी जाएगी।
सच में वो हमने बाय द वे बहुत हेल्प तुम्हारी कर दिया है। बैकग्राउंड में पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है वो कलरफुल? वो मंडाला। वो जो कलरफुल वाला है? नहीं नहीं, ये नहीं। पीछे वॉल पे मंडाला तो मैंने देखा था येलो कलर का। वॉल पे है दो। एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे स्प्लैटर पेंटिंग है। सॉरी, ब्लैक वाले के साइड में इस तरफ वाइट कलर का है। हाँ हाँ सो वो एक्चुअली मेरा हैंड प्रिंट है हाँ। जिसमें मैंने फ्रेंच में लिखा हुआ है आई एम ब्लेस्ड एंड देन फ्लावर एंड पेटल्स प्रिंट किए हुए हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे को दूर से ऐसा लग रहा था जैसे तुमने कोई स्प्लैटर पेंटिंग ऐसा कुछ किया है, तो इंटरेस्टिंग है। दूर से काफी अच्छा लग रहा है। इट्स गुड आइडिया। थैंक यू सो मच। सो हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। और भी सिचुएशंस हैं हमारे पास जो मैं आगे कन्वर्सेशन में ऐड करूंगी एंड वी रियली वांट यू टू रिएक्ट ऑन दैट आल्सो। तो अभी यहाँ पे अब ये वो क्वेश्चन है जो आई थिंक इफ यू रिमेम्बर जब हमने जस्ट मतलब जब एकदम बिल्कुल इनिशियल फेज में जब आइडिया आया था ये, तो ये वो रिएक्शन है जो तुमने मुझे उस टाइम पे दिया था एंड आई थिंक पीपल आई वांट द पीपल टू नो दैट रिएक्शन कि now that you have I think you know a lot of things about unwrapping labels, so एक how बार तो मैंने short अनरैप्ड लेबल्स भी लिखा था एक वही जगह। वही छोड़ दो अभी, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्शियल पार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन ये है मेरा कि हाउ स्केप्टिकल और हाउ श्योर यू आर ऑफ आवर आइडिया ऑफ अनरैपिंग लेबल्स। मतलब आई थिंक मुझे दोनों ही वर्जन जानने हैं, एक उस दिन के कॉन्वर्सेशन के रेफरेंस में जो इनिशियल फेज में मैंने तुम्हें बताया था, और आज जब तुम हमें कुछ टाइम देख चुके हो अब, तो आई थिंक आई like to know both the versions of your opinion. Very much sure about the idea. It is quite unique, and it is not like it's not uh, a recurring thought. It is different. People usually do not ponder upon the idea of the name or idea behind choosing a name. अभी मैंने शायद श्रीकांत फिल्म देखी थी, उसमें भी वो श्रीकांत जब बोलेंट नाम रखता है तो इट वाज गिवन बाय अब्दुल कलाम टू हिम कि and he asks why Boland, then he says कि because you are good people who want to do good deeds in this for the society. So people just keep names जैसे जैसन पोशी मार्ट्रिडर्स, वो सोचते नहीं है ज्यादा कि ठीक है भगवान के नाम पे आशीर्वाद बना रहेगा कहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग? Yes. कैसे, सोलो या लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और कहाँ? तो वैसे मेरे को तो सोलो ही ट्रैवल करना पसंद है, और शायद पहाड़ों में जितना दूर हो सके इंसानों से। So, out of all places, which one do you find the most meditative from the point of view of finding inspiration? तो पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लगता था क्योंकि वहाँ पे हर जगह बहुत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत क्रिएटिव माहौल है। वहाँ पे एजुकेशन का कि हर जगह तुम आर्ट क्रिएट कर रहे हो। वहाँ पे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्लेस के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स बन रहे हैं। फिर एक प्रॉप डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग मास्क और प्रॉप्स वगैरह बने जा रहे हैं। और फिर अलग अलग जगह पे कोई लाइट सेटअप कर रहा है, कोई एक्टर्स अपने प्ले की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो क्लासेस जा रहे हैं। तो मेरे को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। बहुत छोटी सी और काफी क्लोज में अच्छी स्पेस लगती थी। पर अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट मेडिटेटिव इंटरेस्टिंग स्पेस, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे मैं आई कैन बी माई सेल्फ एंड आई कैन क्रिएट। Okay, so what's the latest inspiration you have, and do you have any recent artwork that you have created? I'm looking for an inspiration. I'm trying to
deconstruct my style of what I want to rather evolve my style into something better and उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ चीजें आइडियाज कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहा हूँ और अभी रिसेंटली जो मैंने आर्ट वर्क क्रिएट किया है तो आई एम ओके विद इट आई एम नॉट सो इम्प्रेस्ड बाय इट बट आई एम लुकिंग आई एम नॉट so content. Okay. And so next question I'm going to ask, do you personally watch or listen any kind of podcast or any podcast you follow? Yes, I follow a lot of podcast series. I used to watch Ranbir Alabadia's Beer Bicep. एक मेरे को बॉम्बे शेविंग कंपनी का बहुत पसंद है. फिर रैपिंग लेबल पे मैंने अपना पिछला वाला तो पूरा मुझसे देखा नहीं गया बट तो मैंने बाकी देखे थे तो काफी इंटरेस्टिंग थे कि कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं. देन और कौन से पॉडकास्ट देखता हूँ मैं. एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट है, नाम भूल रहा हूँ. वो बेसिकली ब्रांड्स और ब्रांड बिल्डिंग की बात करता है. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. फिर मैं बाकी कुछ गैलरीज के भी पॉडकास्ट हैं जो आर्ट वर्क्स के बारे में बात करते हैं और आर्ट स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं और या फिर वो फेमस पेंटर्स और फेमस आर्ट पीसेस वगैरह के बारे में बात करते हैं. वो मैं देखता हूँ और बस और क्या बाकी सब तो वो पॉडकास्ट अगर ढूंढने की कोशिश करो तो आधे टाइम तो वही भूत प्रेत और वो काला जादू तंत्र पता नहीं वो फालतू की चीजें चलती रहती हैं. वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. वो इतना बेकार वो कर रखता है. इतने वेले हैं लोग. ओके, सो जैसे आपने मेंशन किया कि आप रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट देखते हैं, तो just to give you a feel that you are on a podcast, तो आप भूतों पे यकीन करते हैं या आपने येटी देखा है? I really want to answer you. आप भूतों पे बिलीव करते हैं या फिर आपने येटी देखा है? कारी मनाटी भी देखता हूँ मैं. कारी मनाटी का वर्जन दे सकता हूँ रणवीर अलाहाबादी से. ये आंसर के लिए नहीं हम A+ कंटेंट नहीं बनाते. ओके, तो यकीन करते हैं कि आपने भी ऐसी देखा है. या ओ या आई टोटली अंडरस्टैंड. it's okay. Calm down. What do you mean by ghost? Okay, so next question. What is your opinion on male versus female podcast creators? मेरे को क्वेश्चन बड़ा अजीब लगा. आज की डेट में ना जो सिनेरियो है पॉडकास्ट मेकर्स का अगर तुम देखो तो वो सीधा मेरे को लगता है वहां पे जाते हैं ये एआई वगैरह पे जाते हैं अलग अलग और वहां पे टाइप करते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ पॉडकास्ट. वो गिनती के 10-5 टॉपिक्स हैं. उसमें लॉन्डे भी वही बात कर रहे थे, लॉन्डियां भी वही बात कर रही होती हैं. तो मेरे को कोई डिफरेंट लगता नहीं है. वही चीज क्योंकि गेस्ट भी वैसी है. तुम एक ही बंदे को 10 पॉडकास्ट में देखोगे और वो सेम चीज बोल रहे होंगे. तो मेरे को एज सच वो डिफरेंस लगता नहीं है कि बंदे क्या कर रहे हैं बंदियां क्या कर रही हैं पॉडकास्ट. तो आई एम येट टू फाइंड कि अगर कोई बहुत फ्रेश टॉपिक कोई या फिर कोई मतलब कुछ मीनिंगफुल लेके आए इन जनरल पॉडकास्ट टर्म्स जो हेल्प करे लोगों के लिए. तो जैसे हमारी IIM अहमदाबाद की है श्वेता अरोड़ा. शी हैज कंटेंट और उसको मतलब फिर वैसे बंदे भी अप्रोच करते हैं कि मैम आपने कैट कैसे क्रैक किया या फिर मैम आपने ये कैसे किया वो कैसे किया. तो फिर उसे जब डिमांड आ रही है तो उसे सप्लाई देनी पड़ेगी. सेम थिंग हैपेंस विद रणबीर अलाहाबादिया की उसको
लोग बोलते हैं कि यार तांत्रिकों को बुलाओ और वो वैसा कंटेंट चाहिए, हमें भूत प्रेत के बारे में करना है, या फिर वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नेक्सस पे हमें चाहिए, तो फिर वो फिर वही करता है। तो ठीक है, आई गेस सब लोग वही कर रहे हैं, तो आई फील What do you कि think about our podcast? Are we unique? Or at least we are trying to do something unique or यस different? यू आर डूइंग यूनिक। हाँ यूनिक है। Okay, now I am going to give you a word and you have to complete that word with a word only. Okay, so are you ready for that, Anuj? Yes. Okay, okay, my first word to you is prize. Is 18th April party pending है। Okay, next option is green Peaceful, and the last one is animals. beautiful beings, Okay, so one question you would like to ask us? nothing. Nothing. You have Poshna. this, you can ask Yeah, we are giving you opportunity to ask us something. anything you ठीक है want. यार, मतलब did you like the artwork? Did you like the design? Yeah, हमें तो डिजाइन बहुत अच्छा लगा आपका एंड द कंसेप्ट बिहाइंड दैट एंड द कलर्स यू हैव Your यूज्ड, artwork or any ऑल्दो particular? बेसिक कलर्स है बट उसके पीछे का जो आपने ये बताया कि रेड इज फॉर पैशन एंड येलो इज फॉर व्हाट ग्रोथ, आई थिंक Energy. Energy. एनर्जी. Energy, happiness. Energy, happiness. So we are finding that in our team कि हमारे टीम मेंबर में वो एनर्जी, वो स्पिरिट हो एंड जो हमारा वेंचर है जहां तक हम लेकर जाना चाहते हैं वो आई होप कि हम ये सब कर सकें. सो स्वाति, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ, नहीं, खत्म करते हैं या फिर आप कुछ अपने सीक्रेट्स बता दो. मेरे Or पास you कोई want to add secrets है ही something? नहीं यार. What secrets do you want to know? Ask. I'm an open book. Oh, we can't. हम पूछ नहीं सकते सीक्रेट्स क्योंकि आपके सीक्रेट्स आपको पता होंगे. बस हम लोग यही पूछ सकते हैं कि कोई सीक्रेट है जो आप शेयर करना चाहते हो या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से हमारे लिए. एनी मैसेज, एनीथिंग. आप लोगों को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, प्रोडक्ट्स Tapping levels also. हाँ, अनरैपिंग लेबल्स भी फॉलो करो, शेयर करो और कमेंट करो, क्योंकि अच्छा वेंचर है और कुछ रोज नया सीखने को मिलता है उस पर. Thank you so much. Okay, थैंक यू अनुज. thank you. Thank We you so had much. really enjoyed your company and So this Okay. is your second time with us and hope we will reconnect again. Sure. Okay. Bye.